Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success, and today we are going to solve illustration number 4 of the chapter number 1 problem on fixed and fluctuating capital method है obviously 12th commerce bookkeeping and accountancy. You can see the screenshot of the question on the screen students. This is the problem which we are going to solve and understand. Working notes पर भी हम discuss करेंगे and posting definitely we will do it. So before going ahead students, new people to my channel, kindly like, subscribe and share so the video is useful to everybody. ठीक है, चलिए पहले तो हम रीड करते हैं कि प्रॉब्लम है क्या. प्लीज़ अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपरली and then we will work out on the working notes and definitely we'll post them to the respective accounts, okay, under both the methods, fluctuation and fixed capital method. So illustration number 4 है हमारा. Sun and Moon were partners with capital of 10 lakhs and 5 lakhs. ठीक है, तो इनका जो इनिशियल कैपिटल वो जो लेकर आए हैं बिजनेस में वो है 10 lakhs and 5 lakhs which I have written here. You can see below capital 10 lakhs Sun and Moon 5 lakhs. ठीक है, then they agreed to share profits in the ratio 3:2 जो मैंने यहाँ पर लिखा है ऑलरेडी 3:2. Show how the following transactions will be recorded in the capital accounts of the partners in both the cases. मतलब capitals are fluctuating and capitals are fixed. ये दोनों methods में हमको दिखाना है जैसे previous videos में या previous illustrations में हमने already किया हुआ है. बट एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे कि पार्टनर्स क्या करते हैं. दे आर ब्रिंगिंग एडिशनल कैपिटल हियर. ऑब्वियसली सन लाता है 2,25,000 एंड मून 1,50,000. सो उन्होंने एक टेबल दिया है जहाँ पर जो भी एडजस्टमेंट रिलेटेड आइटम्स है वो उन्होंने दिया है. यहाँ पे यू कैन सी हियर स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% सन, अगेन 5% मून. ड्राइंग्स अकाउंट ड्यूरिंग 2016 22,500 15,000. Interest on drawings 1,350 Sun and 900 of Moon. Salaries given to only Sun, that is 15,000. Commission given to both, that is Sun and Moon, 7,500 2,5250. Share in the loss for the year 2016 45,000 and 30,000. और ये लॉस वाला जो है ये इस प्रॉब्लम में आया है. So first of all we will enter all the details which have been given and also we will try to solve I'm going to say enter all the details in the working notes. You can see the working note here students. Yes, so capital मैंने already आपको बोला है 10 lakhs है सन का, मून का 5 lakhs है. एडिशनल कैपिटल वो लोग लेकर आए हैं here 2,25,000 and 1,50,000. Now first of all we'll work out on interest on capital. जो बोला गया है हमको 5% है. With the help of calculator I will try to show you. Okay, just minimize this if possible. Okay, it's okay. See here, interest on capital है 5%. तो 5% there are two capitals. एक है कैपिटल है नॉर्मल रेगुलर वाला और एडिशनल कैपिटल भी है. तो हमको दोनों के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है. पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल द मेन अमाउंट जो वो लेकर आए हैं 10 lakhs के ऊपर निकाल के दिखाते हैं. ऑब्वियसली 10 lakhs इंटू 5% विल गिव यू 50,000. कैलकुलेशन हमें पता है, करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी जस्ट फॉर योर रेफरेंस 10 lakhs इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100. दिस इज़ हाउ वी आर डूइंग इट. 50,000 इज़ ऑफ सन एंड सेम वे 5 lakhs का होता है मून का. 5 lakhs का 5% है 25,000. ठीक है. नाउ फोर्थ मैंने लिखा है एडिशनल कैपिटल है सन का 2,25,000 और मून का है 1,50,000. यू कैन सी. नाउ स्टूडेंट्स रिमेंबर हियर, अगर हमको एडिशनल कैपिटल के लिए अगेन डेट नहीं दिया गया है तो वी हैव टू कंसिडर इट फॉर 6 months. ये जाता है विदाउट सेइंग. ठीक है, तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं एडिशनल कैपिटल का 2,25,000 ऑफ सन. ओके, हाउ मच 5%, ऑब्वियसली 5 डिवाइडेड बाय 100. now it is for 6 months I told you, so 6 divided by 12 which will give you 5,625. you can see here. okay, then comes of moon. मून का भी कैलकुलेशन करेंगे हम. मून का है 1,50,000 स्टूडेंट्स. मल्टीप्लाई बाय 5%, 5 डिवाइडेड बाय 100. 6 मंथ के लिए करेंगे 6 डिवाइडेड बाय 12.
विच विल गिव यू 3750। अब हमको टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ आप देख सकते हो, आई जस्ट क्लोज दिस और मिनिमाइज दिस, आई शो यू। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा हमारा ये 50,000, ओके, 50,000 प्लस 5625 of sun, which will give you 55,625। I hope you got it। हमने क्या किया है, 50,000 प्लस 5625 ऐड किया है तो हमको मिला 55,625 ऑफ सन। मून का भी वैसे ही करना है, 25,000 हमको मिला है। सो आई जस्ट हाईलाइट इट सो दैट इट विल बी यूजफुल फॉर यू। सो 25, 1 मिनट, यस, 25,000 प्लस 3750 दोनों मिलाकर हमको मिलता है 28,750। तो ये टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमको मिल गया है। नाउ ड्राइंग्स ऑलरेडी यहाँ पर प्रॉब्लम में दिया था हमको, आई एम सॉरी, हमारे लिए दिया है ड्राइंग्स जो है 22,500 and 15,000 विच आई हैव ऑलरेडी एंटर्ड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी दिया है ऑटोमेटिकली, देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट स्टूडेंट्स, 1350 and 900। देन सैलरी दिया गया है सिर्फ सन को, दैट इज़ 15,000, मून को कुछ भी नहीं। देन कमीशन दिया गया है दोनों को, सन एंड मून, दैट इज़ 7,500 and 5250। ओके, नाउ यहाँ पर फर्म का लॉस भी दिया है, दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस, ऑब्वियसली लॉस दिया है एंड दे हैव ऑलरेडी शेयर्ड कैलकुलेटेड इट बाय डिफॉल्ट। तो 45,000 and 30,000, so 45,000 and 30,000। आई होप द वर्किंग नोट इज़ क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अगर ये प्रॉब्लम आता है तो वर्किंग नोट दिखाना ही चाहिए आपको। वंस योर वर्किंग नोट इज़ डन, आई ऑलवेज टेल यू कि वर्किंग नोट पहले क्लियर कर लो, क्योंकि वर्किंग नोट करने के बाद आप पोस्टिंग आराम से कर सकते हो विदाउट एनी कन्फ्यूजन, बिकॉज एवरीथिंग इज़ हैंडी। आपको सिर्फ ट्रांसफ़र करना है फॉर्मेट में। तो एक बार ये चार्ट रेडी होता है आपका, दैट इज़ वर्किंग नोट, यू आर क्लियर व्हाट टू एंटर वेयर एंड यू नो कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड कहाँ क्या करना है, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट योर वर्किंग नोट। क्विकली हम चलते हैं हमारे फॉर्मेट की तरफ, एंड यू नो द फॉर्मेट हमको दोनों मेथड में करना है, फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएशन या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में, दोनों में दिखाना है। सो लेट्स गो टू द फॉर्मेट अंडर फिक्स कैपिटल मेथड। एज वी ऑल नो स्टूडेंट्स कि हमको दो अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, एक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड दूसरा है पार्टनर्स करंट अकाउंट। हम पहले अंडर फिक्स कैपिटल करते हैं, टेक्स्ट बुक में पहले फ्लक्चुएशन में दिया है, बट वी विल फर्स्ट डू अंडर फिक्स कैपिटल मेथड। हमारा मेथड सेम रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर एक एडिशनल आ चुका है, एडिशनल कैपिटल जो मिल गया है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड स्टूडेंट्स, चलिए एंटर करने लगेंगे अब हम, सो दैट वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम एज आई एम टू से एज सिंपल एज दैट। ओके, सो सबसे पहले हम क्या एंटर करेंगे, कैपिटल है 10 लाख सन एंड 5 लाख मून। सो विल गो हियर, कहाँ पर आएगा, क्रेडिट साइड। हमको अब तक तो पता ही है दैट वी हैव सॉल्व्ड सो मेनी प्रॉब्लम्स नाउ। सो यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, 10 lakhs एंड 5 lakhs, 10 lakhs एंड 5 lakhs, ठीक है। देन क्विकली विल गो टू नेक्स्ट। एडिशनल कैपिटल लाया गया है तो डेफिनेटली वी विल राइट हियर एडिशनल कैपिटल लाया है, सो ऑब्वियसली व्हाट वी विल राइट स्टूडेंट्स, दे हैव ब्रॉट इट इन कैश फॉर श्योर। ओपनिंग बैलेंस तो बिल्कुल नहीं है, सो वी विल राइट हियर बाय कैश और बाय और बैंक अकाउंट। हाउ मच, सन ने लाया है 2,25,000, करेक्ट, और 1,50,000 हैज़ बिन ब्रॉट बाय मून, 1,50,000, ठीक है। सो हियर वी एंटर्ड बोथ द थिंग्स। सो नाउ विल क्विकली गो टू द एडजस्टमेंट पार्ट ऑफ इट, आई एम टू से, और बाकी क्या दिया गया है वी विल सी। सो लेट्स गो टू द इलस्ट्रेशन। यस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको ऐड करना है यहाँ पे, और मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पूरा कैलकुलेशन हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, एंड वी हैव गॉट द टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज 55,625 for whom, for moon,
है ना, तो एंटर करते हैं इमीडिएटली। और 28,750 है मून के लिए, सन के लिए 55,625 और मून के लिए 28,750। चलिए एंटर करते हैं। ऑब्वियसली कहाँ पर आएगा ये एडजस्टमेंट, इट विल डायरेक्टली कम विद द पार्टनर्स करंट अकाउंट, ओके, एज ऑन द क्रेडिट साइड फॉर श्योर बिकॉज इट्स एन इनकम, एक्सपेंसेस ऑन द डेबिट, इनकम ऑन द क्रेडिट, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। सो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टोटल आपको लिखना है यहाँ पे। टोटल कितना था, आई टोल्ड यू 55,000, आई जस्ट शो यू अगेन, 55,625, 55,625 और मून का है 28,750, 28,750, ओके। देन विल गो टू द नेक्स्ट, और ये हो गया हमारा कैपिटल। ड्राइंग्स वी हैव, दे हैव डायरेक्टली गिवन, ड्राइंग्स है 22,500 ऑफ सन, सो वी विल राइट ऑन द डेबिट साइड टू ड्राइंग्स अकाउंट, that is your 22,500 and how much is of moons, your 15,000, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15,000, ठीक है। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हमको डायरेक्टली दिया गया है स्टूडेंट्स, 1350 सन है और 900 मून है, सो वी विल राइट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स again, how much is it, 1350, 1350, we'll write it properly, and moon का है 900, okay। then let's go to the working note again, यहाँ पर है salary given to son, how much, 15,000, so we will write here by salary अकाउंट हाउ मच, सन को ही दिया गया है, सो वी विल राइट 15,000, ओके। देन विल गो टू कमीशन, कमीशन इज गिवन टू बोथ द पार्टनर्स, सो बाय कमीशन है 7,500, सो वी विल राइट योर फर्स्ट बाय कमीशन अकाउंट, हाउ मच इज इट, 7,500, 7,500 एंड यहाँ पे मून को भी दिया गया है, हाउ मच, 5250, 5250, ओके। देन लेट्स सी व्हाट एल्स इज गिवन, लॉस दिया गया है, तो ऑब्वियसली वी हैव टू एंटर लॉस एंड वी आर ऑल अवेयर कि लॉस कहाँ आता है स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली इट कम्स ऑन द डेबिट साइड, है ना। सो वी विल राइट हियर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, if you want you can write in the bracket as loss because obviously it's a loss, ठीक है। और ये ऑलरेडी हमको दिया गया है स्टूडेंट्स 45,000 एंड 30,000, 45,000 and 30,000। नाउ आई होप स्टूडेंट्स यू गॉट टू नो कि अगर हमारा वर्किंग नोट रेडी है तो हम सारे ये जो एंट्रीज है आराम से डाल सकते हैं। नाउ ओनली थिंग वी आर सपोज टू डू इज टैली दिस। तो पहले हम चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ। सो वी विल सी ऑब्वियसली क्रेडिट साइड हायर है, डेबिट साइड पर कुछ भी नहीं है, तो योर वी विल गेट और टैली ऑफ 6,50,000, 6,50,000 और यहाँ पे हमको मिलेगा 12,25,000, एज सिंपल एज दैट, 12,25,000। ऑब्वियसली क्रेडिट साइड हायर है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को डेबिट साइड पर भी लेकर जाएंगे। हमको बैलेंस कैरिड डाउन का फिगर फाइंड आउट करना है। सो ऑब्वियसली व्हाट आई विल डू, I will write as usual what I do normally to balance carried down
और सेम अमाउंट है. ओके, आई जस्ट कॉपी पेस्ट हियर. ओके, सो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रेडी है, सो वी कैन ब्रिंग इट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एज वेल. सो हाउ मच, सेम अमाउंट कितना है. आई एम जस्ट कॉपिंग एंड पेस्टिंग हियर सो दैट यू विल इमीजिएटली अंडरस्टैंड. आई होप यू आर सॉल्विंग ऑन द अदर साइड. प्लीज सॉल्व इट विथ योर हैंड्स, फॉर श्योर यू विल बी डूइंग द सेम थिंग. आई एम जस्ट टेलिंग यू. सो विल गो टू पार्टनर्स करंट अकाउंट. स्टूडेंट्स, आप देख ही सकते हो. सो पार्टनर्स करंट अकाउंट में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि डेबिट ज़्यादा हो, क्रेडिट ज़्यादा हो, या डेबिट ज़्यादा हो, क्रेडिट कम हो, या एक पार्टनर का क्रेडिट ज़्यादा हो और डेबिट कम हो. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. पहले तो हम देखते हैं कि कौन सा क्या है. हियर इफ़ यू कैन सी 33,000. या हियर यू विल गेट मोर देन. कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे हम, so that it will help us to get a clear idea. First of all, we'll do on the credit का टोटल देखते कितना है. 28,750 plus 5,250, that will give you 34,000. ठीक है, तो यहाँ हमको मिला how much, 34,000. I'll just write it and keep here, okay, because I want to tell you the debit of moon. तो debit of moon कितना मिलता है हमको. It's 45,900, correct? It is 45,900. मतलब हमारा डेबिट जो है मून का वो ज़्यादा है. So that is 45,000. I'll just write here only so that we'll understand. तो obviously हम ज़्यादा अमाउंट लिखेंगे यहाँ पे. 45,900 both the sides, correct? both the sides हमको लिखना है. और यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन डेफिनेटली आएगा. सो वी विल राइट एज बाय बैलेंस carried down. How much? I'm talking only about the moon, students, so let us use the calculator. तो यहाँ पर है हमारा 45,900 माइनस मून का ऑन द क्रेडिट साइड था 34,000, विच विल गिव अस 11,900. तो ये बैलेंसिंग फिगर है यहाँ पे 11,900. ठीक है. नाउ विल सी व्हाट इज़ हैपनिंग विद द सन. नाउ कौन सा हाईएस्ट है यहाँ पर हम देखें. सो वी थिंक दैट डेफिनेटली अंदाजे से हम बता सकते हैं. कैलकुलेटर भी यूज़ करेंगे हम यहाँ पे. प्लीज़ यू ऑल डू सॉल्व इट विथ योर हैंड्स चिल्ड्रेन. 55,625. दिस इज़ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. आई एम यूजिंग कैलकुलेटर. सो प्लस 15,000 प्लस 7,500 which will give you 78,126. I hope I am correct. Once again it's 175, I guess. Once again 55,625 plus 15,000 plus 7,500, या 78,125. और अगर अंदाज़ा लगाएं तो हमको दिख रहा है कि डेबिट साइड ऑफ सन इज़ लेस. सो यहाँ पर हम लिखेंगे हाउ मच, 78,125, राइट? या 78,125. तो फिर भी इनका टोटल भी कर ही लेंगे हम, बिकॉज वी शुड अंडरस्टैंड इट कि कौन सा हाई है, आई एम टू से हाईएस्ट है, और कौन सा लोवेस्ट. So 22,500. I am totaling debit of sun plus 1,350 plus 45,000. ठीक है. It will give you 68,850. मैंने कहा था आपको 68,850. ठीक है. सो इससे पता चलता है कि द क्रेडिट इज़ हाईएस्ट ऑफ सन. तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट पर 78,125 लिख देंगे. सो द सेम विल बी कमिंग ऑन द डेबिट ऑल्सो, बिकॉज हमको बैलेंस कैरी डाउन दिखाना है. यहाँ पेस्ट कर देंगे. सो वी विल राइट हियर
balance carried down. Okay, it's been shown in the bold. हमको bold नहीं चाहिए, so I will remove the bold. Okay, so after minusing, how much we will get? That is very important, students. तो हमको मिलेगा, let us do it here only, 78,125 minus 68,850. So it will give us 9275. Yes, it will give us 9275. ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर है डेबिट का. So you can see here, students, that we have got buy balance carried down on both the sides. Okay, so let us bring it on the same line. तो अच्छा भी लगेगा देखने में. It will look cool, you know. Yeah. So I told you how we got the balancing figure, students. डेबिट साइड पर 9275 है सन में, और क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस कैरी डाउन है मून के लिए, और वो अमाउंट है 11,900. सो दिस इज हाउ यू हैव टू शो द कैलकुलेशन अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड. आई होप यू गॉट द कैलकुलेशंस एंड दिस लाइन वाज फॉर योर रेफरेंस, कैसे मैंने माइनस किया है. Now quickly we'll go under fluctuating capital method, where we have to prepare only one account, that is partners capital account, students. एंड हमको पता है कि पूरा जो दोनों अकाउंट्स का डिटेल्स है वो यहाँ पर जाएगा. तो क्विकली हम यहाँ पर भी एंटर करते हैं. टिल नाउ वी आर अवेयर, क्योंकि ये हमारा 4th प्रॉब्लम है, वी आर वेरी क्लियर अबाउट हाउ टू एंटर. तो मैं जल्दी से आपको दिखा दूँ ओपनिंग बैलेंस और एडिशनल कैपिटल जल्दी से बाय बोथ दिस, यू नो, कॉपी करके I will enter on the credit side here. So without wasting time, I hope you understood how it came here, children. Partners capital account में हमने क्या किया है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10 lakhs 5 lakhs, और एडिशनल कैपिटल बाय कैश और बैंक 2,25,000 और 1,50,000 यहाँ पर दिखा दिया है. ऑब्वियसली सारे एडजस्टमेंट वन बाय वन आएंगे. अभी पहले तो आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कैलकुलेशन हमने किया था टोटल वाला ही दिखाना है. सो वी विल एंटर इट हियर. ओके, इसको थोड़ा सा मैं, ओके, सो दैट, ओके, 1 minute, या, यस, just adjust this so that you know it will look good. Okay, fine. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा दिया हमने. देन वी हैव टू शो द सैलरी ओनली टू सन. आई जस्ट एंटर ऑल द डिटेल्स अबाउट ऑन द क्रेडिट साइड फर्स्ट. आई होप स्टूडेंट्स यू आर ऑन द सेम पेज, यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट एम आई डूइंग. देन हमारा कमीशन है, दोनों पार्टनर्स को दिया गया है ऑलरेडी. सो आई विल ब्रिंग इट ऑन द क्रेडिट साइड टू. ओके, नाउ जो हमारा ड्राइंग्स दिया गया था ऑलरेडी इन द वर्किंग नोट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. सो दैट ऑल्सो विल कम ऑन द डेबिट साइड. यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हमको दिया गया था, बोथ द पार्टनर्स, दैट विल टू कम ऑन द डेबिट साइड. देन प्रॉफिट एंड लॉस जो दिया गया था, दैट विल ऑल्सो कम फॉर श्योर. ओके, सो दिस इज द डायरेक्ट थिंग्स विच यू आर सपोज टू डू, एंड आई थिंक टिल नाउ वी आर अवेयर अबाउट इट. ओके, सो सारी चीज़ें हमने एंटर कर दी है. यहाँ पर दोनों अकाउंट्स में आता है साइमल्टेनियसली, लेकिन यहाँ पर हमने एक ही अकाउंट में करना है. सो लेट्स सी, वी हैव फिनिश्ड विद दिस. सो ड्राइंग्स अकाउंट हमने एंटर कर लिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट एंड लॉस. ठीक है, क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एडिशनल कैपिटल बाय कैश, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी अकाउंट हो चुका है, देन बाय कमीशन. सो लेट्स टैली इट स्टूडेंट्स क्विकली. सो लेट्स सी विच साइड इज़ हाईएस्ट. ऑब्वियसली हमारा जो क्रेडिट साइड है वो हाईएस्ट है, क्योंकि 10 लाख 5 लाख दिखा रहा है, यहाँ पर हज़ारों में बात हो रही है. सो लेट्स टैली ऑल दिस. कैलकुलेटर को हम लेकर आते हैं क्विकली. वी विल प्रोवाइड द कैलकुलेटर ऑन द राइट हैंड साइड सो दैट हमारा कैलकुलेशन ईजीली हो जाए. ओके, सो लेट्स सी 10 lakhs, ये 12,25,000 हो जाते हैं. 12,25,000, 1 2 3 25, तो ये दोनों मिलाकर 12,25,000 प्लस 55,625 प्लस 15,000
plus 7,500, which will give you a grand total of how much? 13,03,125. तो यहाँ लिखो 13,03,125, ठीक है, 13,03,125. और मून का टोटल क्या है? 5, this is 6,50,000 students, 6,50,000 plus 28,750, 28,750. I hope you all are solving the problem on the other side. Please do it. Plus 5250, which will give you a grand total of 6 lakh. Oh, how much? Yeah, 6,84,000. Some, I hope the total is correct. 6,50,000, 28,750 or 5,250. So we'll add it again. I hope this will give us 6,50,000. Okay, plus 28,750 plus 5250, 6,84,000 है. Okay, so we'll write here 6,84,000. Oh, 1 minute. यहाँ पर हमको मिला था 13,03,125. ओके, और इसका टोटल हमने अभी किया है जो है 6,84,000, 6,84,000. 1, 2, 3. Okay, let us bring both the totals here because we will find out the balance carried down here, children. तो डेफिनेटली ये अमाउंट कम ही दिख रहे हैं. आई वुड लाइक टू टेल यू, यहाँ पर 6,84,000 है. टेक्स्ट बुक में आपको दिखाया है 6,83,950 बिकॉज इन द प्रॉब्लम यहाँ पे इट इज़ 5250. इन वन ऑफ द कैलकुलेशंस दे हैव टेकन 5200, तो इसीलिए वो फ़र्क दिखा रहा है. सो आई जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इन केस यू चेक द टेक्स्ट बुक, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड चेक द टेक्स्ट बुक. लेकिन वहाँ पे 5250 नहीं लिया है, 5200 लिया है, इसीलिए वो दिखा रहा है फ़र्क, ठीक है. सो विल यूज़ द कैलकुलेटर अगेन. यहाँ पर 13,03,125 माइनस 22,500 minus 1,350 will give you 12 lakhs. ओके, यहाँ से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हट गया है बिकॉज व्हेन वी वर डूइंग कैलकुलेशंस तो थोड़ा सा वो हट गया था, तो ये वाला फिगर नहीं दिख रहा है. सो वी विल पेस्ट इट हियर व्हिच वाज अर्लियर ऑलरेडी पेस्टेड. ओके, so I hope it will show correct figure now. Let us check. Yeah, okay. तो यहाँ पर हम देखेंगे अभी कैलकुलेटर. लेट मी ऑन द कैलकुलेटर अगेन. आई एम शोइंग द कैलकुलेशंस फॉर योर रेफरेंस स्टूडेंट्स so that it will help you that how we have arrived to the figure 13,03,125 minus करेंगे 22,500 minus 1,350 minus 45,000 which will give you 12,34,275. correct, 12,34,275. okay, then on the other side let's see what has been shown by moon. यहाँ पे 6,84,000 है, 4,000 minus 15,000
900, I took the first two figures together, minus 30,000, 30, which will give you 6,38,100. 6,38,100. 50 रुपीज़ का डेफिशिएंसी इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि वहाँ पर 50 इन्होंने यहाँ पर नहीं लिया था, दिस फिगर. सो काइंडली अंडरस्टैंड 6,38,100. सो यहाँ पर कैन राइट टू बैलेंस brought down, sorry, carried down. So we have already got the figure. यहाँ पर आप लिख सकते हो to balance next year brought down. How much is this? This is the amount. So copy and paste. So this is how you have to solve the problem, students. हमने बहुत slowly किया है so that you people should understand. Please have a time management and solve it. You understood the problem, you can do it quickly. Calculations पर ध्यान दीजिएगा and solve it, students, and please comment in the comment section and tell me how did you find or how much time you have taken so that I'll get an idea and just keep revising and practicing. So the problem is clear in front of you. इसको मैं delete कर देती हूँ, but let it, yeah, we'll delete it. So here we finished with illustration number 4, students, and I hope you understood the problem, and hence we will do all the partnership final accounts की problems भी हम करेंगे. Till then, take care, children. Soon I'll be coming with more practical problems. Till then, take care, be safe, keep revising and practicing. Thank you so much.